بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ سیلابی صورتحال ملک کے کم و بیش جو علاقے ہیں، چاروں صوبے ہیں، اگر کہیں تو مبالغہ رائے نہیں ہوگی، وہاں پہ ہے۔ بلوچستان کے اندر صورتحال خراب ہے۔ سندھ میں جو متعدد اضلاع ہیں انہیں آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی معترض ہے اس بات کے اوپر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کراچی کی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ وہاں انتخابات ملتوی کیے جاتے، لیکن گزشتہ روز بھی بارش ہوئی ہے، آج بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ حیدرآباد ڈویژن کی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اندرون سندھ کے مختلف علاقوں کے دورے پر ہیں۔ آج قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی ڈیٹیل بتائی ہے اور کہا ہے کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے کیونکہ تمام ریکارڈ ٹوٹے ہیں گزشتہ کئی برسوں کے، اور سندھ کے جو مختلف اضلاع ہیں وہاں صورتحال بہتر نہیں ہے۔ بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جنوبی پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں بھی صورتحال خراب رہی ہے۔ گزشتہ 2-3 روز سے ضرور یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور اب جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا فوکس بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے قبل یہ ہوتا رہا ہے کہ یہ تمام معاملہ سیاست کی بھینٹ چڑھا رہا ہے، چاہے وہ شہباز گل کی گرفتاری ہو، عمران خان صاحب کے جلسے ہوں اور دیگر معاملات ہوں، تو لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اس جانب زیادہ مبذول رہی ہے۔ اب بھی جو حکومت ہے ان کا اعتراض یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس گھڑی میں بھی اپنے جو سیاسی جلسے ہیں اس میں مصروف ہیں۔ انہوں نے جلسوں کا شیڈیول دے رکھا ہے اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ان علاقوں میں کیا صورتحال ہے۔ دو جو صوبے ہیں وہاں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور یہاں جو صورتحال ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے سندھ اور بلوچستان میں، گو کہ وہاں زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ شہباز گل کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ آج مسترد ہوا ہے، انہیں جوڈیشل کسٹڈی ہو گئی ہے، تو جتنی ایکٹیویٹیز تھیں جو نظر آ رہی تھی، آج بھی پولیس نے کوشش کی کہ ان کا 7 روز کا مزید ریمانڈ لیا جائے، مگر عدالت نے اسے مسترد کر دیا۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کی پیشی کا معاملہ ہے، فیصلہ کیا گیا کہ وہ کل پیش ہوں گے اپنی ضمانت کے حوالے سے۔ تو یہ جو تمام معاملات ہیں، بجلی کی اور مہنگائی کی صورتحال، جس پر آج خرم دستگیر خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، کہا ہے کہ جو ریلیف ملا ہے 1,71,00,000 افراد کو، مگر وہ جو ریلیف ہے وہ صرف 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے افراد کے لیے ہے۔ لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ اتنی جو بھاری بھرکم بل آئے ہیں اس کے اوپر مطلب جو اچھے لوگ ہیں ان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار محترم جناب امیر عباس صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب قادر مندخیل صاحب، اور سینئر صحافی تجزیہ کار محترم جناب نذیر لغاری صاحب۔ امیر عباس صاحب، پہلے تو یہ کہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے جو بلوچستان میں اور سندھ کے اندر ہے، لیکن جو جنوبی پنجاب ہے وہاں کی بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ اب 2 صوبے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، آج کے پی کے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ وہاں کیا پرفارمنس ہے؟ چلیں ہم ان کی پرفارمنس تو مندخیل صاحب سے پوچھیں گے۔ کیا ہے، کوئی نظر آیا آپ کو پنجاب کے اندر؟ پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی، کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، ہر 3 سال 2 سال 4 سال کے بعد سیلاب کی آفت آ رہی ہے۔ اگر ہم ماضی بعید میں نہ جائیں اور ماضی قریب میں دیکھیں تو 2010 کا بڑا سیلاب، بلاول صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ سپر فلڈ تھا وہ۔ 2014 میں جب دھرنا چل رہا تھا اس وقت بھی ستمبر 2014 میں بڑا خونی قسم کا سیلاب آیا۔ 2015 میں بھی سیلاب آیا۔ اس کے بعد بھی ہر سال پانی کناروں سے ایک دفعہ ہم روتے ہیں کہ جی پانی کی قلت ہے، 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ یہ صورت یہی حالت ہے۔ دیکھیں، یہ امریکہ میں کولوراڈو ریور، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو اس میں پانی اتنا بفر کر باہر نکلتا تھا کہ وہ 7 ریاستوں کو ڈبو دیتا تھا، یا وہ اتنا خشک ہو جاتا تھا کہ لوگ اس میں سے پیدل گزرتے تھے۔ تو پھر امریکہ کا ایک صدر آیا جس کا نام ہوور، اس نے دیکھا کہ یہ ہم دنیا کی سپر پاور بننے کی بات کر رہے ہیں، ہم سے ایک دریا نہیں سنبھالا جا رہا ہے، اور اس نے پھر ان 7 ریاستوں کو بٹھایا اور اس نے وہاں ایک ڈیم بنایا جس کو ہوور ڈیم کہتے ہیں، جو کہ انجینئرنگ میریکل ہے دنیا میں۔ دنیا کے جتنے بھی سیاح جاتے ہیں وہ ہوور ڈیم ضرور دیکھتے ہیں امریکہ میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے دریاؤں کے اندر اتنا پوٹینشل ہے۔ یہ سیلاب نہیں ہے، یہ سیل آب ہے۔ اب یہ ہماری بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، چونکہ حکومتیں، ہر عمران خان صاحب ہوں کوئی بھی ہوں، شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، ایڈ ہاک پالیسیز ہیں، 5 سال کے بعد الیکشن کیسے جیتنا ہے، ورنہ آپ
अब बैठे हैं सेनेटर साहब सिंध से हैं, मंदोखेल साहब सिंध से हैं, कालाबाग डैम एक तनाजा बना हुआ है। इसके अलावा अच्छा वो नहीं बनाना था भाई, कोई और ही डैम बना देते। भाषा डैम अब जाके ये इमरान खान साहब के दौर में उसकी ईंट रखी गई, ये मामला ज़िया-उल-हक साहब के जमाने से शुरू हुआ। मैं समझता हूं कि जितनी कुदरती आफात है उनको इंसान रोक नहीं सकता, उनके वकू पजीर होने से रोक नहीं सकता, लेकिन उनके नुकसानात को रोक सकता है। अगर आप कुदरती आफात के नुकसानात को नहीं रोक सकते तो ये आपकी बदबख्ती और बदनसीबी है। कुदरत ने आपको जो इल्म दिया है, जो आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी तबाही जो पाकिस्तान, अब कराची देखें। ये तो एक मामला हो गया मंसूबा बंदी का कि जी आपको मंसूबा बंदी या पेश बंदी करनी चाहिए। दूसरा ये कि मामला अगर हो जाए तो उसके बाद जो रिस्पांस होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो कहाँ नजर आता है? वो तो मेरा ख्याल है कोई खास हमें पंजाब में उस तरह से नजर नहीं आया, जनूबी पंजाब। लेकिन जनूबी पंजाब से पहले जब बलूचिस्तान में आया और अब सिंध में आया, तो जनूबी पंजाब बीच में वो सैंडविच होके उसकी खबर आने ही रुक गई कि वहां पे, अब चूंकि लगारी साहब को अच्छी तरह जानते हैं कि अब वहां पे क्या है, पिछले 3 दिनों से तो हम लाड़काना कंबर के जो वहां पे जो लोगों के हालात हैं वो देख रहे हैं। उससे पहले बलूचिस्तान ने तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते तबाही, और अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने भी हाईलाइट नहीं किया बलूचिस्तान और वहां की खबरें, क्या क्या कुछ तबाही फिर गई, गाँव के गाँव तबाह हो गए, लेकिन किसी ने कोई ये जरा सा कोई मामला होता है, शहबाज गिल ये हो गया या इमरान खान साहब या नवाज शरीफ या मरियम, हम लोग भी कैमरों के पूरे फौज जफर मौज लेके पहुंचे होते हैं, लेकिन वहां पे जो है ना क़यामत गुजर गई लोगों के ऊपर। अब सब सिंध में क्या सूरत हाल रही है, क्योंकि लाड़काना से आपका ताल्लुक भी है? और देखिए भैया, सिंध की जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा ना पूरे प्रोविंसेस का, तो पंजाब अपने हिसाब से डिलीवर कर रहा है जो भी उसके हाल में है। 2 दिन पहले जब पंजाब के सीएम से बात की गई, या जो पीडीएमए का वहाँ हेड था, तो उससे पूछा गया कि राजनपुर खास करके वहाँ वो ज्यादा जो है वो इलाका मुतासर हुआ है, तो वो बता रहा था कि हमने 125 बोट वहाँ हायर किए हैं, 125 बोट हैं, उसके अलावा 11 22 वहाँ है, राशन है, जो भी मतलब हम कर रहे हैं इससे, लेकिन करने की और नीड है वहाँ, ऐसे नहीं कि मतलब माहौल वो कंट्रोल में है। देखिए केपीके में तो पहले ही आई बारिश, अभी वही पानी है जो आगे जा रहा है, अभी कम है बारिश वहाँ। सिंध की देखें, जैसे हाफिज साहब आपने कहा ना कि मतलब हम सब लोग आजकल जो है ना वो 2 चीजों पे बंटे हुए हैं जिसके पीछे लगे हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट हलीम आदिल शेख के सिवा उसको देखने में कुछ नहीं रहा, वो उसके पीछे लगी हुई है। वफाक की हुकूमत जो है शहबाज गिल के पीछे लगी हुई है और पीटीआई के लीडरशिप पे केसेस दाखिल करने में लगी हुई है। लेकिन आप वहाँ की हालत देखें, हम साफियों को भी ना भूले, हमारे पीछे भी अच्छा वैसे आप भी पीछे नहीं है, केपीके में आप भी शुरू हो गए, पंजाब में आप भी शुरू हो गए, मतलब बराबर है, आग लगी वो नहीं है बात, वो नहीं है बात। देखें ना उस पर वो लंबी बहस है, हमें एक्चुअली बातों पे बात करनी चाहिए हकीकत ये, क्यों शायद कोई अवाम के मसाइल हल हो। मैं आपको अपना बताता हूँ, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध जब 5-6 दिन बारिशें लगातार हुई, कराची के बाद इंटीरियर सिंध में बारिशें कम हुई थी, लेकिन कराची में जब बारिश थमी कुछ तो इंटीरियर सिंध में बहुत ज्यादा उसका जोर पकड़ गया। 6-7 दिन के बाद आगे सीएम सिंध अनाउंस करते हैं इंटीरियर सिंध में कि भाई हमने 22 डिस्ट्रिक्ट को आफतजदा करार दिया। अभी देखिए वो ये नहीं कहते, इंटीरियर सिंध के हैं ही टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद और 22 डिस्ट्रिक्ट और, तो ये पूरा सिंध जो है वो आफतजदा है। तो आप कहाँ थे? आप अभी उनसे देखें, आप एक आप डिस्ट्रिक्ट में जाए ना, मैं आपको 2-3 डिस्ट्रिक्ट का, मैं तो लोग सारे सिंध के लोग फोन कर रहे थे, मैंने अपनी पार्टी को भी कहा है, मैंने कहा आप पंजाब से केपीके से कहीं से भी कोशिश करें कि कुछ ना कुछ रिलीफ लोगों को मिले। ये हम सब मुसलमानों पे, सब पाकिस्तानी लोगों पे ये फर्ज है कि हम कुछ करें, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसको देखना पड़ेगा इन चीजों को। मैं लाड़काना का मिसाल देता हूँ, सुबह आज डीसी जो है लाड़काना का चांडियो साहब, वो बता रहा था कि मेरी डिमांड है 2 लाख टेंट की, वहां मुझे टेंट मिले हैं 3340। आप आ जाएं खैरपुर में, वहां के डीसी हैं वो अबड़ो साहब हैं, वो तो उससे मैंने पूछा कि क्योंकि पूरी इलाके के लोग कह रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं पीडीएमए से भी बात करूं, अच्छा मैं यहाँ एनडीएमए से भी बात करूं, लेकिन जब खैरपुर के डिस्ट्रिक्ट से बात की तो उसने कहा कि मेरे पास टेंट पहुंचे हैं 3600। मेरी डिमांड जो है वो मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि 3 लाख है, 26 लाख की आबादी है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की, लाड़काना की आबादी जो है वो भी तकरीबन 28 लाख है, हर डिस्ट्रिक्ट की आबादी तकरीबन 25 लाख 28 लाख 30 लाख किसी की 20 लाख यहाँ तक है। सवाल ये उठता है इस चीज का कि सिंध गवर्नमेंट जिसके पास ये नहीं है, मैं बीइंग एज अ पार्टी इस पे तनकीद नहीं करता, बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबको हक है कि हम किसी की कोई तस्ही हो सके। 15 साल गुजर गए, जैसे अमीर अब्बास साहब ने कहा कि 2010 में फ्लड आया, 2014 में फ्लड आया,
इस वक्त तक सिंध गवर्नमेंट ने कितनी प्रिक्योरमेंट की है, कितनी बोट्स उन्होंने खरीदी हैं, कितने डिवाटरिंग पंप्स अरेंज किए हैं, कितने टेंट अरेंज किए हैं। देखिए ये चीजें तो पहले होनी चाहिए थी ना, जब कराची में बारिशें हो रही थी और जिसकी वजह से आपने देखा या तो वो इलेक्शन भी जो है वो मुलतवी हुए, तो उनको बाकी जो उसका अरेंजमेंट था वो भी उनको करना था। लेकिन आपने देखा कि इनके मिनिस्टर हैं, सिर्फ इनको गालियां देने के अलावा कुछ नहीं है। हलीम आदिल इनके फ्लड जाए, पूरा सिंध का आवाम चला जाए, हलीम आदिल नहीं जाए कहीं भी। हलीम आदिल जेल में पड़े, वो जेल में हो गया, भाई अभी तो आप काम करें। ठीक। तो देखिए बहुत अफसोसनाक वहां की कंडीशन है। अच्छा मैं ये चीज बताऊं कि टोटल सिंध में इंटीरियर सिंध के डिस्ट्रिक्ट की 22 है, ठीक है, पूरा सिंध आफतजदा है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट कहीं भी देखने में नहीं आती कि 2 लाख टेंट की वजह से 3000 टेंट है। जवाब लूंगा, लेकिन मैंने पहले लगारी साहब से जनूबी पंजाब की सूरत हाल जरा लगारी साहब ब्रीफ कर दीजिएगा। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि 350 किलोमीटर एक पूरे का पूरी लंबाई है जो कश्मीर से शुरू होती है और चली जाती है इस्माइल खान कैंट तक, और ये पूरे का पूरा कोहे सुलेमान का दामन है। कहीं 80 किलोमीटर, कहीं 60 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर, कहीं करीब हो जाता है, कहीं कोहे सुलेमान दूर हो जाता है। ये पूरे पूरा इंडस के दरमियान का है। एक तरफ दरिया सिंध बह रहा है, ऊपर की तरफ कोहे सुलेमान है, और बीच में जो है ये पूरे का पूरा इलाका जो है सैलाब की जद में है। और बीच में कच्ची कैनाल बनाई गई, वो उसके अंदर रुकावट बनी तो उसने फैलाव किया। फिर आगे एक और नहर थी, उसकी वजह से फैलाव हुआ। फिर आगे एक और नहर थी, उसकी वजह से फैलाव हुआ। मालूम हुआ कि वो नहरें जो रास्ता रोकती हैं, तो वो कुदरती जो गुजरगाहें हैं वो सारी की सारी पहले ही खत्म हो चुकी हैं और वो नहीं है। आपने कहा कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने जमीनों को आबाद कर दिया है, नहरें निकाल दी हैं, वो नहरें अजाब बनी हुई हैं, और ये सारे की सारी आबादी जो है वो बेघर होकर रह गई है। और वहाँ बड़े पैमाने पर अमवात हुई हैं और इसके आदाद शुमार अभी सामने नहीं आई हैं और बहुत कम बताए जा रहे हैं। मवेशी गए, फसलें गई, सारा कुछ जो है सब कुछ तहोबाला हो गया है, इंसानी जिंदगी खत्म हो गई है और जीरो रिस्पांस है गवर्नमेंट की तरफ से। पंजाब गवर्नमेंट ने रोजान सिटी वो 80% पानी के सैलाब के अंदर बह गया है। फाजिलपुर जो है मेन ये इंडस हाईवे पर है। इंडस हाईवे पर पहला बड़ा शहर जो आता है किश्तमोर के बाद रोजान है। रोजान मजारी जो है वो ऑलमोस्ट बह चुका है। उसके बाद आगे के जितने शहर हैं वो बह चुके हैं। राजनपुर में पानी को रोका गया है लेकिन पानी रुक नहीं पा रहा है। राजनपुर के मज़ाफात तक 3 किलोमीटर तक आ चुका है पानी, किसी वक्त भी शहर में दाखिल हो सकता है। आगे कोटला वो ईसन है, वहां पर पानी आया है। फाजिलपुर जो है वो डूब चुका है। फाजिलपुर से आगे के गांव जो है वो पानी के अंदर है। फिर थोड़ा सा इलाका बच जाता है क्योंकि पीछे का पानी का प्रेशर कम हुआ, लेकिन आगे जाने के बाद मैं आपको दरिया और कोहे सुलेमान के दरमियान के अब इंडस हाईवे भी आगे जाने के बाद, जामपुर से आगे जाने के बाद वो भी सारे का सारा जो है वो दरिया बुर्द हो चुका है। अब इंडस हाईवे को आप तलाश करते रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। कोटछुटे के आसपास के इलाके, माना हमदानी, आरा जाफर और जखर इमाम शाह, शेरू और छोटी जेरीन, छोटी बाला, ये लगारियों के घर, ये सारे के सारे ये जो हैं ये सैलाब के पानी में चले गए हैं। सरदारों के तो और घर हैं, उनके मुल्तान में घर हैं, डरगाजी खान सिटी में घर हैं, उनके जो है वो इस्लामाबाद में और लाहौर में घर हैं। वो गरीब कहाँ जाएं जिनके पास टेंट भी नहीं है, जिनके पास शेल्टर भी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन नजर आई आपको लगारी साहब? कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस नजर आया? उन्होंने क्या किया है? बहुत थोड़ा। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुछ कर रही हैं और वो जाहिर है इतना बड़ा फैलाव है तबाही का कि वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयां होती हैं इंडस हाईवे के करीबी इलाकों में। भाई ये जो 80 मील की पट्टी में आगे कौन जाएगा? असल बात लोग फंसे हुए हैं, लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कश्तियां नहीं हैं, लोगों के पहुंचने का किसी लोगों ने सोचा नहीं था। एक तो ये कि इस डिजास्टर को हम किसी के साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। पुराना साल का ये 56 के बाद के सारे सैलाब मेरे देखे हुए हैं। पिछले 60-65 साल के सैलाब तो हमारे सामने के, कोई इसका मुकाबला नहीं है। ये जो है तारीख का कम अज कम हमारे नॉलेज में, मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा है, उनकी जिंदगी में भी ऐसा बड़ा जो ये भी अभी सिर्फ वहां से आ रहा है जो बारिश हो रही है पहाड़ों पर, कोहे सुलेमान पर, और कोहे सुलेमान अफगानिस्तान में भी है और बलूचिस्तान में भी है और डरगाजी खान में भी है। तो कोहे सुलेमान के जितना पानी है बलूचिस्तान का वो भी इधर आ रहा है और उनको जो डरगाजी खान का पानी है, कोहलू का पानी है, डरापुक्टी का पानी है,
और मूसा खैर का पानी है, बारखा का पानी है, ये सारे का सारा पानी जो है सही। ये आ रहा है डीजी खान, राजनपुर और डेरा इस्माइल खान में। ठीक। ये इस सारे के सारी पट्टी को जो है इसने तहस नहस कर दिया है, ठीक। देहात बह गए। ठीक। ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। मेरा ख्याल है कि 50 लाख से जायद आबादी सिर्फ सराइकी बेल्ट में जो है ये मुतासर हुई है। अच्छा, मंदोखेल साहब, ये अबड़ो साहब ने भी सिंध का मंजरनामा बताया, लगारी साहब ने जुनूबी पंजाब की सूरत हाल बताई। अब सिंध हुकूमत चैलेंज क्या है, वहां तबाही कितनी हुई है, और फिर ये सवाल कि जी 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है कुदरती आफत है, लेकिन जो इंसानी प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते थे वहां कितनी जो है आपको कमी कोताही नजर आती है? क्योंकि इंसान को गलतियों से सबक सीखना चाहिए, अगर जो चीजें है कोई चीज लैग करती है तो ठीक होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज तारिक साहब। पहले तो अमीर अब्बास साहब की एक जुमले में मैं जवाब देना चाहूँगा। अमीर अब्बास साहब ने अमेरिका का हवाला दिया है। यकीनन हम अमेरिका का तो शायद अगले 200 साल भी मुकाबला न कर सके उनकी डेवलपमेंट का, और उसका बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में 1% लोग टैक्स देते हैं, अमेरिका में 100% लोग टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में 1% टैक्स वाले कितने टैक्स देते हैं? 2, 4, 6, 7%। वहाँ 48-48% डायरेक्ट टैक्स है। कनाडा में 49% टैक्स है, ठीक है। और मुझे याद पड़ रहा था 2001 में मैं लंदन में था, मलका बरतानिया का बयान आया था, उस वक्त 35% टैक्स था यूके का। तो ने कहा हमारा टैक्स का निजाम इतना अच्छा है कि 200 साल तक जो है ना मैं बरतानिया को पाल सकती हूँ, इसी सिस्टम में हमारा कोई और रहो। तो यकीनन मैं अमीर अब्बास साहब की खिदमत में अर्ज करूँ कि उनका बेहतरीन टैक्स निजाम है। यहाँ पे हम सिर्फ IMF और कर्ज पे मुल्क चल रहे हैं, तो यकीनन जो डेम का हवाला दे रहे हो होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। यहाँ रोटी और पानी मिल जाए तो बड़ी। मंदोखेल साहब, एक और एडमिशन भी कर लें कि टैक्स निजाम जो है वो इस वजह से सही नहीं हुआ क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस का शिकार होती रही हैं। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैं अबड़ो साहब की बात का जवाब तो मेरा ख्याल में लगारी साहब ने दे दिया। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ कि KPK में सही है, पंजाब डिलीवर कर रहा है, तो वो तो लगारी साहब ने दे दिए, मैं मजीद आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। और बाकी रह गया हलीमा दिल शेख, उसकी दास्तानें अगर मैं सुन लूँ तो शायद गोगा गोगी का जो करप्शन का स्कैंडल जो आने वाला है उससे ज्यादा खतरनाक हलीमा दिल शेख का है। बहरहाल कानून उनसे निमट रहे अपने तौर पे, मैं उसे क्या बोलूंगा। साथ साथ में ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि लगारी साहब ने भी फरमाया कि हमने बड़ों से पूछा, तारीख में ऐसा सैलाब नहीं है, और आपके मीडिया के तोसत हाफिज तारिक साहब जो बता रहे हैं कि 30 साल में ऐसा कभी खतरनाक सैलाब और इस तरह सूरत नहीं की। अब इस तरह कुदरती आफत से निमटना और उसके लिए एडवांस 2 लाख टेंट खरीदना, जो कि DC साहब ने इनको बता दिए कि 3000 है वगैरह वगैरह, ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बाकी इल्जाम जो मर्जी हम एक दूसरे के ऊपर लगा ले, और आप इस चीज का निशानदेही कर, इस चीज का आप अप्रिशिएट करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि वजीर खारजा इस वक्त, उन्होंने यूरोप का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया सिर्फ अपनी आवाम के लिए। आज भी आप मीडिया के आपके रिपोर्टर से पूछे, पूरा सिंध काबीना वजीर आला समेत बिलावल साहब सिंध के दियात और गोटों में इस वक्त भी मसरूफ है, और 25,000 फी कस जो है ना वो इमदाद का ऐलान भी किया। और जो टेंट वर्ड है जो मैं अबड़ो साहब के साथ उसमें बहस नहीं चाह रहूंगा, और जो जिन जिन DC साहिबान का ये नाम ले रहे हैं कि उसने ये बोला, मुझे लगता है उनके साथ उसकी दोस्ती अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका नाम लेके उनकी शामत की वो तैयारी कर रहा है। क्यों ये इन्होंने बता दिया, इसका ये मतलब थोड़ी है अब आप खींचना शुरू करते हैं उनको। मतलब यही है कि भाई वो DC ने बता दिया, अब DC की खैर नहीं है, ये तो चाहता है कि खैर ना हो। मंदोखेल भाई हर डिस्ट्रिक्ट में यही है, मैंने तो 2 नाम बताए हैं आपको। नहीं तो आपने डिस्ट्रिक्ट तो बता दिया, खत्म हो गया। नहीं, लाड़काना खैरपुर 2 डिस्ट्रिक्ट है ना, DC का नाम आ ही जाएगा ना। आ ही जाएगा ही, तो आपने अबड़ो खुद ही बता दी, अपनी कौम का बंदा है आपका। अच्छा, दूसरी बात ये यही सूरत-ए-हाल में एक जवाब सामने रख रहा हूँ, क्या इमरान खान नियाजी साहब को जलसे जुलूस और शहबाज गिल के अलावा कोई दौरा किया है? शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, मैं ताल्लुक मुस्लिम लीग नहीं है, वो सिंध भी किया है, बलोचिस्तान भी किया है, हर जगह किया है।
क्या आपका जो साबिक वज़ीर आला था वसीम अकरम प्लस क्या नाम है उसका, उस्मान बुज़दार साहब, उसका इलाका पूरा तबाह हो गया, लगारी साहब उसकी निशानदेही करेंगे, तस्दीक करेंगे, क्या आपको नजर आया? क्या आपका परवेज इलाही साहब नजर आया? चलो उन सबसे बढ़कर आपका चेयरमैन पार्टी का सरबराह है, उनको इसके अलावा कोई चीज नजर आए तो मैं समझ रहा हूँ कि बदनसीबी है और यकीनन नहीं होना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा। इस मर्तबा पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो 30 साल रिकॉर्ड सैलाब का हुआ है। हम सब ने मिलजुल के सारी अपनी तल्ख जो बातें वो एक तरफ रख के हमने इन जो आवाम है मजलूम अमान जो हमारे पाकिस्तानी हमारे भाई है और उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं। तो जिस तरह बंदोखेल साहब ने निशानदेही की कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज उरूज पर हैं, तो क्या थोड़े से दिनों के लिए इसको साइड पे रखना चाहिए और इस जो आफत है इसके ऊपर जो है वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस करके एक पेश पे होकर इस पे लोगों की मदद करनी चाहिए? वक्फे के बाद इस पे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अमीर अब्बास साहब, इस क्राइसिस वाली सिचुएशन के अंदर क्या हमें थोड़ा सा जो पॉलिटिकल फोकस है उसको एक तरफ रखना चाहिए? ये बात जो की है इमरान खान साहब जलसे जुलूस 15-20 दिन बाद कर लें, कोई और चीज़ें वो कर लें, वो उनकी 2 सूबों में हुकूमत है, वहाँ पे वो उनके साथ खड़े हों, नज़र आए। खान साहब को किसी ने रोका तो नहीं है ना? जब वो जाके वज़रा की कैबिनेट की मीटिंग्स ले रहे हैं, वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो वज़ीर आला के साथ खड़े हों, जाएं, अपने लोगों के साथ काम कर रहे हो, इसी तरीके से बाकी लोग भी कर रहे हो। ये जलसे जुलूसों को वो तो हर रोज़, कल हरीपुर में है, परसों कराची में है, उसके आगे ये बात है कि क्या ये है या नहीं, सियासी एक्टिविटीज है वो चलती रहनी चाहिए और ये भी चले सारे में। अगर आप इजाजत दें तो बंदोखेल साहब ने जो टैक्स की बात की, मैं उनसे 100 में 110% इत्तेफाक करता हूं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये पैसा जनरेट करने के ऊपर दिमाग किसने, मगजमारी किसने करनी एडमिट थी? किया ना उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करते रहे ना, इस ताजरों का प्रेशर आता है वो टैक्स हटा देते हैं, कुछ और आता है वो हटा देते हैं। ये पीटीआई वाले भी नहीं कर सके, अभी शहबाज शरीफ साहब भी, कोई और है वो भी नहीं कर सके। फिर जो मैंने अगर प्रेसिडेंट हुवर की बात की तो प्रेसिडेंट हुवर का टैक्स का मसला नहीं था, विजन लीडरशिप की भी तो बात है ना, कि आप असेंबलियों में बैठ के जो मुकन्नना है उसका काम यह है कि वो अगले 50 साल 100 साल 200 साल के बाद ये कौम क्या होगी, तो माजी गामी कौम है क्या? तो ये पूछे ना अबड़ो साहब हैं या खुद मंदोखेल साहब से पूछे, वो रोना उनका कि जो बना के चीजें ले जाते हैं लेजिस्लेशन की, कोई जो है ना वो। देखिए ना, हम इसमें हमारा तो नहीं, अवाम का तो हम तो सवाल ही कर सकते हैं ना कि ये बात। अच्छा, जहां तक ये एक और कमेंट, देखिए चिनियोट एक डैम बनना था जो कई सालों से वो डैम नहीं बन सका। हेड मराला से लेकर जहां से सैलाब शुरू होता है दरिया चिनाब में, हेड मराला से लेकर और जहां पानी चिनाब का गिरता है समुद्र के अंदर, इस पूरे तकरीबन 1200-1300 पट्टी के ऊपर सिर्फ एक डैम बन सकता है कुदरती तौर पर, इसके अलावा कोई जगह नहीं थी दरिया चिनाब पर डैम बनने की। वो चिनियोट डैम था। इसकी लागत क्या थी आप साहब? 60 अरब रुपए। 60 अरब रुपए तो इस मुल्क में पता नहीं कितने फूक जाते हैं हमारी रियासती हुकूमतें। वो डैम नहीं बन सका, जिसकी वजह से दरिया चिनाब जो है वो हर साल सैलाब लेकर आता है। अब जो इमरान खान साहब का, देखिए इमरान खान साहब, एक तो परवेज इलाही साहब को चाहिए था कि वो वहां जाते, उस इलाके में वो एक दफा गए, जो पहले एक दफा गए, लेकिन उनको उस तरह से हमें नजर नहीं आया। फिर उनके लगारी साहब ने तो बड़ा खौफनाक मंजरनामा पेश किया जो है, बिल्कुल ऐसी। मुनीस इलाही साहब उनके साहबजादे जो उनके अब सियासी जानशीन है, सियासी वारिस हैं, उनको चाहिए था कि वो वहां जाके लीड करते। वो तो कल परसों हम बैठे हुए थे तो आपको नजर आया, हमें इस्लामाबाद में घूम रहे वहां नजर आए। इमरान खान साहब को एक दो तरह के जलसे हैं। एक वो जलसे हैं जो उन्होंने अपने 9 हलकों में इलेक्शन कंटेस्ट करना है, वो तो चले, उसकी एक लॉजिक हो सकती है कि वो उम्मीदवार हैं तो उन्होंने अपने इलाके में कैंपेन करनी है। उसके अलावा कोई शायद 17 टोटल जलसे हैं इमरान खान साहब के। उनके अलावा जो जलसे हैं मैं समझता हूँ उनको मुलतवी किया जा सकता था, कोई हर्ज नहीं है। अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते आगे कर दें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है, अगर ये कहे हुकूमत के इमरान खान साहब सियासत ना करें और इधर रुख कर दें, तो फिर हुकूमत भी 3 हफ्तों के लिए गिरफ्तारियां रोक दे। हुकूमत भी तो 3 हफ्तों के लिए पंगे ना लेना फिर ऑपोजिशन के साथ। अगर आप गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी हो, शहबाज गिल और सहाफी और चैनल्स बंद और ये जो एक माहौल बना हुआ है, फिर हुकूमत भी तो उसके अंदर थोड़ा हाथ खींच लेना। तो इमरान खान साहब के ऊपर भी दबाव हम अखलाकी तौर पर डाल सकते हैं कि भाई चूंकि हुकूमत इस वक्त रिट्रीट कर रही है या वो एक खामोशी इख्तियार करी, तो आप भी इस चीज समझ आ रही है कि पहल कौन कर रहा है, एक्शन किसका है, रिएक्शन किसका है, ये कुछ समझ आ रही है इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर। देखिए, वैसे जैसे आपने पहले कहा कि आग तो दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है, लेकिन
ऑपोजिशन में जो भी जमात होगी, जैसे पीडीएम थी, क्या पीडीएम घर बैठ गई थी 25 जुलाई 2018 के बाद? 26 को बाहर निकल आए थे, कहा ऐसी की तैसी इमरान खान हम तुझे नहीं मानते, तो भी इमरान खान को भी तो निकाला गया ना। आप हारे थे इलेक्शन, इमरान खान को आपने निकाला। इमरान खान भी इलेक्शन असेंबली में हारे ना, हारे, लेकिन जारी बात है वो कुर्सी से हटा दिया ना, इसमें और 2018 में फर्क है। वो इलेक्शन हारे, हार जीत होती रहती। आपने एक वजीर आजम जो कुर्सी पे बैठा था उसको कानूनी तरीके से हटा दिया। अब उसको इतना तो रिजल्टमेंट या गुस्से का या अपने तकलीफ का इजहार करने का मौका ऑपोजिशन में कौन बैठता है घर में? सो इमरान खान ने तो जलसे करने एज ऑपोजिशन उसने करने थे, ठीक है। और वो ऑपोजिशन की इस वक्त वाहिद पार्टी है जमात इस्लामी ऑपोजिशन में या पीटीआई, ये बाकी तो सारा इक्तदार में। सो ये नहीं कहा जा सकता उसूली तौर पे कि भी इमरान खान ने पहल क्यों की जलसों की। अब जब वो जलसे करेगा तो जलसे में वो गुलफशानी तो करेगा नहीं, उसने यही कोसना है कि भाई मेरी हुकूमत निकाल दी, इम्पोर्टेड थे, फलाने थे, ढुकारे थे, फितरी बात है। तो अब जब वो शिकायत करेंगे तो इन्होंने शिकायत के ऊपर फिर इन्होंने या करम फरमाओ ने, अब बड़ा सा डबल जिम्मेदारी है, आप अपोजिशन में है लेकिन 2 सूबों में आप हुकूमत में भी हैं, तो आप बैक वक्त हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन, ठीक है, मरकज की हुकूमत जिसमें तो आप कहते हैं कि ये 20 किलोमीटर की हुकूमत है। खान साहब को थोड़ा सा या पीटीआई को ये करना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, ये जो मोमेंटम है 10-15 दिन के लिए अगर उसको पसे पुश डालते हैं तो ये सियासी नुकसान होगा आपको इससे या सियासी फायदा होगा? देखिए, बात ये है कि जो अवामी मसाइल हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सैलाब के इशू है ना, लेकिन आप जो गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेवारी है ना, केसेस 100 मरतबा बनाए, इस पे कोई भी किसी को रुकावट नहीं, लेकिन गलत केसेस के लिए पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। और कम से कम वो पार्टी, वो इत्तेहाद जो 12 जमातों में मुश्तमिल है, जो कह रहा था कि हम आके 1 महीने में सब कुछ सीधा कर देंगे, बेशक वो जहां तक कर सके, लेकिन कम से कम वो अपनी खामियों कोताहियों को छुपाने के लिए आप अपोजिशन पे इतना अटैक कर रहे हैं जो इलीगल। मैं ये चाहता हूँ, या आपको भी ये मतलब, या इस मीडिया के हवाले से अवाम के सब पार्टियों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ट्रेंड न डालें कि कल माजी में आने वक्त में हर किसी को ये तकलीफ हो, हर किसी को भुगतना पड़े ये चीजें। ये एक ट्रेंड आपकी हुकूमत में भी था, प्रोग्राम्स बंद होते थे, चैनल्स पे पाबंदी लगती थी। बात सुने हाफिज साहब, बात सुने, आपके टीवी टॉक शोज में हम आते थे। देखिए, बात ये है कि हर पार्टी को, सब लोगों को पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उस पर देखना चाहिए, लेकिन ये चीजें सब कोई भाई खान साहब बाहर निकलता है। देखिए, बादशाह खान साहब के बाहर निकलने से नहीं हुई। जहां तक हमारे मदोखिल साहब ने कहा ना कि मतलब डीसी की शामत आ गई, इससे ये वाज़ेह है कि जब डीसी हकीकत बताएगा तो उस पर एक्शन होगा, ठीक है ना। जहां तक बात आ गई, आपको सिंध का मीडिया बताता नहीं, ये खुद वो इंट्रोस कर रहे हैं ना। मैंने दोनों नंबर, आप भैया 1 मिनट, मैंने दोनों नंबर आपको शेयर कर दिए। अगर आप लाइव दोनों को ले लें तो बेहतर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, नहीं, लोग खुले आसमान तले बैठे, मैं इस पे तनकीद नहीं कर रहा। अगर मंदोकिल साहब इससे खुश हैं, राजी हैं, तो वो उनकी मर्जी है, मुझे कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने मुझसे हकीकत पूछी, मैंने आपको वो बताया। बाकी सिंध गवर्नमेंट जाने, वहां की पब्लिक जाने, क्योंकि पब्लिक मोस्टली इंटीरियर सिंध की वो पीपी को वोट देते हैं। जहां तक टैक्स की बात की आपने, कम से कम देखें, आप पीटीआई पे ये इल्जाम नहीं दे सकते कि भाई पीटीआई ने कोई एफर्ट्स नहीं लिए। आप आ जाएं 2018 जून में, जब टैक्स कलेक्शन थी, जब आपका बजट आता है तो वो थी राउंड अबाउट 3200 बिलियन। अभी आप जब 2022 जून में देखें, वो 6000 बिलियन तक पीटीआई की गवर्नमेंट ने पहुंचा। 3900 पे आपने लिया था और 6000 पे आपने वो किया, ठीक है ना। 8000 ठीक है, देखें 6000 बिलियन, 2100 बिलियन बढ़े हैं ना 3 साल में। बात ये, हर गवर्नमेंट को अच्छे इकदाम उठाने चाहिए। मकसद ये, जैसे आपने किया, शब्बर जैदी साहब बताते हैं कितनी टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर करना चाहते थे, नहीं कर सके। देखिए, 50,000 रुपए वाले की चीजें की वापस लेने पड़े। साहब, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एफर्ट्स हैं पीटीआई की, लाजमी है। आप डे 1 पे सारे मसाइल खत्म नहीं कर सकते। मंदोकिल साहब ने देखे ना, मंदोकिल साहब ने ये बहुत अच्छी बात की कि देखें अमेरिका में जो उन्होंने फिगर बताई, इतने लोग देते हैं, हम अपने आपको भी तो देखें ना, हम कितने लोग मतलब वहां जाके इंटरेस्टेड हैं कम टैक्स। मंदोकिल साहब, ये खैर मीडिया वाली बात हुई, तो ये मैं ऑन द रिकॉर्ड जो अब हमारे यहाँ हो रहा है अनफॉर्चुनेटली सहाफत के नाम के ऊपर, वो भी कोई अच्छी बात नहीं। मैं खुद उसको एडमिट कर लेने में कोई नहीं, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि कोई सच बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लग गया है कि मीडिया के बहुत सारे लोग सिर्फ पार्टीज के तर्जुमान है, कोई आपका है, कोई नून का है, कोई पीटीआई का है, और जहां अगर उसने जो है ना वो उससे आगे पीछे होता है दूसरे की तरफ से, ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत अफजाई हो रही होती है उसकी सोशल मीडिया के ऊपर कि जो लोग थोड़ा सा भी जिन इज्जत और शर्म और वो करते हैं, वो कहते हैं यार हम इससे दूर रहे तो बेहतर है। वो मतलब सही बात करना जो है ना वो मुश्किल हो गई है।
मंदोखेल साहब, ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, जमात इस्लामी और PTI कहते हैं कि जी ये आप भाग रहे हैं, आप और MKM मिल के ये कर रही है, और सिंध हुकूमत ने एक ड्रामा किया और कराची में नहीं होने चाहिए थे बल्दियाती इंतखाबात। चूंकि आपको शिकस्त का खौफ है कि वहां से PTI जीत जाएगी या जमात इस्लामी जीत जाएगी, इस वजह से आप उससे जो है ना वो पहलू तही कर रहे हैं। हाफिज साहब, पहली बात तो ये कि अबड़ो साहब की ये बात बिल्कुल आप न माने। DC को टेलीफोन करके, पहले मुझे शक था, मुझे पक्का यकीन हो गया इनको साइडलाइन करने का, क्योंकि वो DC क्या बोलेगा आपके सामने, न वो सच बोल सकता है न वो झूठ बोल सकता है। ठीक है, वो सरकारी मुलाजिम, इनको अपने जगह पे काम करना। आपने काफी कह दिया, बस सही है। दूसरी बात, मैं अबड़ो साहब की इस बात से भी मुतफिक हूँ कि टैक्स कलेक्शन PTI की हुकूमत ने की है, और उसमें इमरान खान नियाजी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 2018 में उसने 2 लाख टैक्स जमा किए और 2019 में उनने बगैर कारोबार के 98 लाख टैक्स जमा किए। मतलब आप हकीकी मसाइल पे नहीं आएंगे, आपको आना नहीं है, आप अपने सिंध गवर्नमेंट बताएं भैया। फॉर्म में आप नहीं, फॉर्म में नहीं है, वो बता रहे हैं कि सिंध की आवाम का कितना दर्द है उनको, जी वो बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आपने इलेक्शन के हवाले से बल्दियाती की है, यकीनन आप इस चीज का भी अंदाजा लगा ले कि हमारे जितनी भी कैंडिडेट है, और बल्कि बहुत सारे कैंडिडेट के ऊपर तो मुझे तरस आ रहा था, इस वजह से जिन्हें ठीक ठाक बेचारों ने खर्चा किए है और आज इलेक्शन मुलतवी हो गया, तो ये हमें उस चीज की हो रहा है। हैदराबाद 70% डूबा हुआ है। अगर लहारी साहब यहाँ पे हैदराबाद से वाकिफ हो, या अबड़ो साहब खुद वाकिफ होंगे, 70% पानी से डूबा हुआ है। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन कमीशन को DC हजरात ने, और शायद इनके दोनों दोस्त DC समेत, उन्होंने वो दिए सारे रिपोर्ट दिए कि वहां सामान रखने के लिए कुछ जगह ही नहीं है। आपका मलीर कराची का, हाफिज साहब आप भी वाकिफ है, आपके मलीर में बहुत सारे दोस्त है, तो उसकी भी तो आफत ज्यादा करार दिया गया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में कोई खौफ नहीं है। और फिर एक चीज और बता दूं कि ये कह रहे हैं PTI को, पीपल्स पार्टी को खौफ था। अभी 1 साल पहले मेरा इलेक्शन था, आप यकीन करेंगे कि हाफिज साहब, मैं एक ही जो तकरीर में बात करता था, मैं ये कहता था कि फैसल वाडा अपना मिफ्ताह इस्माइल जीत जाए तो क्या करेगा, मुस्तफा कमाल जीत जाए तो क्या करेगा, MKM जीत जाए तो क्या करेगा, PTI ने यहाँ पे 3.5 साल गुजारे, उन्हें क्या किया है। पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत है। तो अबड़ो साहब को मैं ये यकीन दहानी करा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन इस वजह से पीपल्स पार्टी जीतेगी, क्योंकि आवाम को अच्छी तरह पता है कि बल्दियाती अदारे यहाँ सूबाई हुकूमत के साथ कनेक्टेड है। हम ही वाहिद हल है आवाम के और आम के मसाइल की, कोई और पार्टी नहीं कर सकती। वरना आपकी 14 MP MNA और 28 MPs सिंध में आपने 3.5 साल में क्या किए, वो तो कराची और सिंध के आवाम अच्छी तरह वाकिफ है। तो सवाल ये है कि एक आफत की सूरत में इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी की है, हमारा कोई उसमें नहीं था, और फिर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। और क्योंकि हमारे इत्यादि MKM वाले सब ज्यादा आर्टिकल 140 का हवाला देते हैं, उस हवाले से सिंध ने बकायदा, अबड़ो साहब को पता हो, सेलेक्ट कमेटी बनाए जिसमें कानून साजी करनी थी, और मुतफका तौर पे हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर देनी, आप इलेक्शन करा दे। तो मैं कहता हूँ अच्छा मौका है अबड़ो साहब की पार्टी को और बाकी दोस्तों को भी कि वो सिंध हुकूमत के साथ बैठ के सिंध के जो बल्दियाती कवानीन है उनके ऊपर सेलेक्ट कमेटी ऑलरेडी बनी है, उसमें जो बेहतर बनाना चाहे इसको बेहतर बनाए, ताकि हम MP MNA और सेनेटर से थोड़ा बोझ कम हो, क्योंकि बल्दियाती अदारे मौजूद हो गए तो MNA और MP और सेनेटर के ऊपर बोझ कम हो जाता है उसमें। कि वो पार्टीज को सूट नहीं करता ना, पॉलिटिकल पार्टीज को। वो ये आप तो ये बात कर रहे हैं, मगर बहुत सारे MNAs और MPs चाहते ही नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ठीक हो, जो उनकी चौधराहट है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल हमारी चौधराहट खत्म हो, लेकिन आवाम का मसाइल आना चाहिए। पहले एक MNA होगा, फिर उसके साथ नाज़िम भी होगा। तो मैं तो खुश हूँ कि चाहे पूरी टीम बन जाए, चाहे मेरी पार्टी को दूसरे का, ताकि हम आपस में काम बांटें। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अमीर अब्बास साहब, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब, कादिर मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फ़राह अज़ीम शाहिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़राह साहिबा, ज़रा बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, नुकसानात, रिलीफ का जो काम है और जो माली नुकसान हुआ है वो क्या हुआ, उसकी ज़रा आप तफसील बता दें और गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है, उस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा। सबसे
پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل ہی ہم نے ایک ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا تھا نیشنل لائبریری اسلام آباد میں، جس میں تمام UN ریپرزینٹیٹیوز موجود تھے اور جس میں ہماری پرومیننٹ NGOs آف پاکستان وہ بھی موجود تھے، اور ہماری ڈفرینٹ وہ کنٹریز جو کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں ایمرجنسی بیسس میں مختلف کنٹریز میں کام کرتی ہیں، ان کے ریپرزینٹیٹیو بھی موجود تھے، اور وہ میٹنگ ہماری بہت اچھی ہوئی۔ ہم نے ان کو سیلاب کے حوالے سے بلوچستان میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس پہ ان کو بریفنگ دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسسٹنس ہمیں چاہیے اس پہ ہم نے انہیں ایک شارٹ بریفنگ دی ہے، اور انشاءاللہ اس کے نتائج کچھ ہی دنوں میں، آنے والے دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں نقصانات کی جانب۔ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بلوچستان میں، لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں، لائف سٹاک تباہ ہو گیا ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ پہلے ہی بلوچستان میں بہت زیادہ غربت کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بگڑی رہتی ہے۔ جو ٹینٹیٹیو ہمارے پاس فگرز ہیں وہ 230 کے قریب آپ نے کہا کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اسی طریقے سے تھاؤزنڈز میں ہمارے جو ہیں انجریز ہیں، 6 لاکھ جو ہے ہمارے، آپ کو میں بتاؤں لائف سٹاک بہت تباہ ہوا ہے، مال مویشی لوگوں کے بہہ گئے ہیں، اور ایگریکلچر تو مطلب تھاؤزنڈز ایکرز آف ہماری ایگریکلچر لینڈ تباہ ہو گئی ہے، ہمارے برجز بھی گرے ہیں، اسی طریقے سے چیک ہمارے جو پروٹیکشن ڈیم تھے یا ڈیم تھے اور دوسرے بھی ان کو بھی نقصان پہنچا۔ تو نقصان تو بلوچستان میں پچھلے 30 سال کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور یہ جو فلیش فلڈز ہوتے ہیں یہ تو دنیا کے کسی بھی حصے میں آئے، ٹیکنالوجی جتنے بھی ہائی ہو یہ تباہی لے کے آتی ہے، اور یہاں تو پہلے ہی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرعظیم شائبہ۔ امیر عباس صاحب لاسٹ یہ فرمائیے گا کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کے پرائرٹی اگر آپ بتائیں کہ گورنمنٹ کو کیا اس وقت کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ نے جس کو کہا نا کہ ایک طرف رکھ دیں، سیلاب تو چلیں ایک ابھی سر دست بحران ہے، جو نیشنل چیلنج ہے، سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئے۔ اگر الیکشن اسی طرح ہم الیکشن میں داخل ہو جاتے ہیں تو مجھے الیکشن کے بعد بھی انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے۔ اگر عمران خان جیت جائیں گے تو یہی PDM اتحاد پھر کھڑا ہوگا، یہ جیتیں گے عمران خان پھر کھڑے ہوں گے۔ آپ کو ایک نئے سوشل بیٹھنا پڑے گا، سب کو بیٹھنا پڑے گا، اور اس میں دیکھیں عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو فلاں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ غلط بات ہے کہ میں دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، چوروں کے ساتھ، میں مان لیا یہ چور ہے، لیکن آخر اس وقت شہباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کو ریاست وزیر اعظم مان رہی ہے۔ لائی کو بھی تو ڈاکو کہتے تھے، بیٹھے پھر بیٹھ گئے، ساتھ بیٹھ گئے، شیخ رشید کو بھی کچھ کہتے تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پہل کرے، مندوخیل صاحب موجود ہیں یہاں پہ، حکومت ایک 6 یا 7 رکنی وفد اناؤنس کر دے جس میں یہ سارے PDM کے لوگوں کی اس میں رکنیت دے دے، اور حکومت کہہ دے کہ بھئی ڈائیلاگ کے لیے عمران خان سے سوشو پولیٹیکل ڈائیلاگ، سوشو اکنامک ڈائیلاگ کے لیے ہم اپنی ٹیم اناؤنس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حجت تمام ہو جائے گی، پھر عمران خان صاحب کے اوپر ہم دباؤ ڈالیں گے کہ اب وہ اگر ایک ٹیم اناؤنس کر رہے ہیں ڈائیلاگ کے لیے، مشاورت کے لیے، آپ بھی ٹیم اناؤنس کریں، بیٹھ کے جو آپ کے مطالبات ہیں آپ رکھیں سامنے۔ مندوخیل صاحب شارٹلی کمنٹ، یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ پہل کرے اور اس طرح کی کوئی چیز کرے؟ کوئی حرج کی بات ہے جو امیر عباس صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں امیر عباس صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے بغیر اپنی پارٹی سے پوچھے ہوئے آج کہتا ہوں کہ میری پارٹی راضی ہے بات چیت کرنے کے لیے۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، 2018 کا الیکشن نہ مانتے ہوئے بھی RTS سسٹم بیٹھنے کے باوجود میرے چیئرمین نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، تمہارے ساتھ ہے۔ نہ صرف بلاول صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے بولا آئیے میثاق کی معیشت پہ بات کرے، ان دونوں کو بات کو انہوں نے غلط مذہب دے کے نعروں سے جوڑ دیے۔ تو میرے بھائی ہم پہلے بھی ایگری تھے، آج بھی ایگری ہے، آئیے دیکھ کے اس ملک کو جلد سے نکالے، کل آپ بھی کہیں گے میں جیتوں گا، اسی طرح جب تک چلتے ہیں۔ ابرو صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کا جی، سوشو پولیٹیکل ڈائیلاگ۔ ایکچولی تو دیکھیے وہ بارش پہ شراب کا پروگرام تھا، وہاں ہی بات ہونی چاہیے۔ میں زیادہ دیکھیں میں نے کوئی پولیٹیکل بات یہاں کی نہیں، مندوخیل صاحب بار بار اس کو پولیٹیکل لے آ رہے تھے لیکن میں نہیں چاہتا اس، لیکن مندوخیل صاحب کو اپنی پارٹی سے، سندھ گورنمنٹ سے، اس کا بھی میرا بھی ہم سب کا یہ فرض بھی ہے، بینگ ایز ہم پارلیمنٹرین ہے، کہ گورنمنٹ سے پوچھے کہ بھئی ابھی تک آپ نے مطلب کتنی واٹر بورڈ لی ہیں، کتنی ڈی واٹرنگ پمپ کا بندوبست کیا ہے، پانی نکالا جائے گا نا، پانی گاؤں میں کھڑا ہے، ٹینٹ کتنے خریدے ہیں۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ CM سندھ نے اناؤنس کیا ہے 20 کروڑ انٹیریئر سندھ کے 20 ڈسٹرکٹ کے لیے، 1 کروڑ پر ڈسٹرکٹ۔ آپ خود اندازہ کریں اس سے کہ گورنمنٹ کی سیریسنس کتنی ہے۔ باقی جہاں تک دیکھیں یہ چیزیں پولیٹیکلی ہیں کہ بھائی BD الیکشن ہے، PP جیتے گی، جو بھی جیتے گا عوام فیصلہ کرے گا۔ ابھی بھی عوام نے فیصلہ کیا، جو 22 اگست کو الیکشن ہوا تو 12 پارٹیز ایک ہی کیمپ میں کھڑی تھی نا، تو انہوں نے 13,000 ووٹ لیے ہیں،
اور جو پی ٹی آئی کا بندہ اکیلا کھڑا تھا اس نے جو 30,000 سے زیادہ ووٹ لیے. ایسا کوئی ایشو نہیں, یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, ہم بیٹھ کے کیا کریں. جہاں تک 2018 کے الیکشن کی بھائی نے بات کی کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, تو دیکھ میں ایک حافظ صاحب آپ کے توسط سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں جو الیکشن ہوا تھا 2018 کا, وہ کوئی اسی آر ٹی ایس پہ تھا یا کوئی آسمان سے نیا آر ٹی ایس آیا تھا کہ وہ سندھ میں جو گورنمنٹ بنی, یہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو راشد محمود سمرو سندھ کا صدر ہے, اس نے وہ بلاول صاحب کے اگینسٹ الیکشن لڑا تھا لاڑکانہ سے, اس نے احتجاج کیا کہ مجھے جو ہروایا گیا. تو چیزیں یہ نہیں ہیں, بات یہ کہ ہمیں اچھی باتوں کے لیے جو عوام کے ساتھ بہتری ہو, ہم پارٹی سے بالا تر ہو کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہر کسی کو اپنے بہت شکریہ سیف اللہ بڑو صاحب, قادر مندوخیل صاحب, امیر عباس صاحب, نذیر لغاری صاحب بھی اور فرازیم شاہد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.